Hello student, good morning. Today we will study first chapter, The Best Christmas Present in the World. This chapter is written by Michael Morpurgo. As we know that history is a part of our life, इतिहास भी हमारे जीवन का एक important part होता है. There are some dates and periods of time in history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. कि जी इतिहास में कुछ हुआ होता है जो हम सबको याद होता है. Like if suppose we say कि our country India got independent on 15 August 1947, is it? तो ये विश्व जो है, ये पृथ्वी है, उसने वर्ल्ड वॉर भी देखे थी, जो 2 वर्ल्ड वॉर हो गए थे. और ये लेसन में भी ऐसा कुछ है जो वर्ल्ड वॉर से कनेक्टेड है. सो लेट्स स्टडी द चैप्टर. आई स्पॉटेड इट इन द जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट. ब्रिडपोर्ट इज अ नेम ऑफ प्लेस. अ रोल टॉप डेस्क. Narrator is saying that he spotted means so, देखा. क्या देखा ब्रिडपोर्ट शॉप में? रोल टॉप डेस्क. एक रोल टॉप डेस्क उसने देखा जिसमें टेबल होता है और उसमें ड्रॉवर भी होता है. The man said it was early 19th century and oak. O-A-K, oak means लकड़ी का नाम है. तो ये 19th सेंचुरी का था और ओक वुड से बना हुआ था. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition. The roll top in several pieces. One leg clumsily mended. Scratch marks all down one side. The roll top desk was in a bad condition. बहुत बुरी खराब में था. उसका जो एक लेग थे क्लमजिली मीन्स इस तरह से वो मूवमेंट कर रहा था. एंड देर वर मैनी स्क्रैच मार्क्स ऑन द डेस्क. बहुत सारे स्क्रैच मार्क्स थे. और दूसरा कि बहुत ही बैड कंडीशन में था. इवन दो द नरेटर परचेज दैट रोल टॉप डेस्क. उसको अच्छा लगा और उसने परचेज कर लिया. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. और ज़्यादा महंगा भी नहीं था. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. रिस्टोर मीन्स रिपेयर. हियर रिपेयर इसका मीनिंग होता है कि रिपेयर करना. रिस्टोर मतलब स्टोर नहीं करना. हियर इट इज़ द मीनिंग इज रिपेयर. इट वुड बी अ रिस्क वेदर इट इज़ रिपेयर और नॉट. तो रिस्क भी था. अ चैलेंज, a challengeable task was there to repair such a bad conditioned roll top desk, but I had to have it. But here narrator was determined to purchase it and he had purchased. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. Narrator started working on it. He started to repair the roll top desk and it was Christmas Eve. क्रिसमस होता है वो होता है 25 दिसंबर और उसकी अगली जो शाम होती है इट मीन्स 24 दिसंबर इज क्रिसमस ईव. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. As he was repairing, so he pulled out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere. veneer जो होता है लकड़े पर लगाने का जो लिक्विड होता है, so the veneer had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. Here narrator thought that the roll top desk probably damaged by the water. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk, and here also he thought that this roll top desk might have been damaged by water and fire. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. Gently means softly. उसने थोड़ा softly ड्रॉवर ओपन करने की कोशिश की. बट इट कुड स्टक. वो एकदम जाम हो गया था.
In the end, I used brute force. As he tried gently, he couldn't open. He tried with his brute force. Brute मतलब थोड़ा जोर से उसने ओपन करने की कोशिश की. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. And here the narrator had done or had tried with his total force. उसने टोटल फोर्स के साथ उसको खोलने की कोशिश की. और साइड में he had given the fist. उसने फीस्ट से खोलने की कोशिश की. फीस्ट मतलब हम हाथ बंद करके, जो कभी ना खुले तो हम हाथ बंद करके, पता है, साइड में हम फोर्स देते हैं, वो फोर्स देकर उसने खोलने की कोशिश की. एंड यस, द ड्रॉवर ओपन, बट ही सो अ सीक्रेट ड्रॉवर in it. There was something in there. I reached in and took out a small tin box. Sellotaped to the top of it was a piece of lined notepaper and written on it in shaky handwriting. He taken out the small box. It was tin box. टिन का बनाया हुआ बॉक्स था और उस पर एक पेपर लगाया था और सेलो टेप से स्टिक किया हुआ था. और पेपर पर किसी की शेकी हैंड राइटिंग, शेकी मतलब हाथ जो ट्रिम्बलिंग कर रहे, सेकिंग कर रहे, ट्रिम्बलिंग हैंड और ट्रिम्बलिंग जो मोशन करते हुए लिखा था, वैसी हैंड राइटिंग में लिखा था, जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915. स्टूडेंट, दिस इज़ इम्पोर्टेंट लाइन फॉर यू कि उस पर क्या लिखा था. क्वेश्चन आता है कई बार कि जो टिन के ऊपर पेपर लगाया था उस पर क्या लिखा था. तो आंसर आएगा जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915. कब रिसीव हुआ था? 25 January 1915. टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स. इसको मेरे साथ दफना देना जब टाइम आए. आई न्यू एज आई डिड इट that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my surplus. It usually does. And here it was someone else's letter, so someone else property. Narrator feels hesitate कि किसी की बिलोंग करती हुई प्रॉपर्टी हो या लेटर हो तो कैसे वो खोले या कैसे ओपन करे. बट ही वॉज क्यूरियस और अपनी इच्छाओं पर वो काबू नहीं कर सका. यहाँ पर एक वर्ड है स्क्रूपल्स. स्क्रूपल्स मीन्स फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग. ऐसी फीलिंग्स आना कि आपको हेजिटेट हो के किसी की प्रॉपर्टी को कैसे खोला जाए, कैसे देखा जाए, वो हेजिटेट होना. इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप. The address reads Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated on the top December 26, 1914. ये लेटर लिखने की डेट है, कब लिखी थी? December 26, 1914. और मिला कब था? इट वॉज रिसीव्ड 25, 1915. कीप इन योर माइंड दोस डेट्स. आपको दिमाग में ये डेट रखनी है. सो फ्रॉम दैट टिन बॉक्स नरेटर गोट अ लेटर. वहाँ से उसको लेटर मिला जिस पर एड्रेस भी था. क्या था? जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट. ये लेटर का एड्रेस था. और लेटर किसने लिखा था? जिम मैकफरसन. और किसके लिए लिखा था? मिसिस जिम मैकफरसन. कीप इन योर माइंड द नेम. मिसिस जिम मैकफरसन को ये लेटर मिला था. उसका हस्बैंड का नाम क्या था? तो मिस्टर जिम मैकफरसन. क्वेश्चन 1. What did the author find in a junk shop? So the author find in a junk shop a roll top desk. The second question is, what did he find in a secret drawer? He find a letter from the secret drawer. tin box में जो लेटर लिखा था वो. Who do you think had put it in there? तो आपको पता ही लास्ट में नाम दे दिया है. मिसिस जिम मैकफरसन
हैड पुट द लेटर इन इट, वहाँ पर उसने वो लेटर रखा था। नाउ पार्ट 2। नरेटर स्टार्टेड टू रीड द लेटर। वो लेटर वो शुरू करता है। डियरेस्ट कनी, किसको लेटर लिखा गया है? कनी को। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माई माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस एंड हियर। जिसने भी लेटर लिखा है वो कह रहा है कि उसके साथ कुछ वंडरफुल हुआ है जो वो कनी के साथ शेयर करना चाहता है। एक्चुअली पहले से मैं बता दूं कि ये लेटर जिम मैकपर्सन ने लिखा है, अपनी वाइफ कनी है उसको लिखा है। और दूसरी बात ये कि जिम मैकपर्सन है वो एक सोल्जर है और वहाँ से जहाँ से वो लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ से उसने अपनी वाइफ को लेटर लिखा है क्योंकि उसके साथ कुछ अच्छा सा मोमेंट उसने शेयर किया है, अच्छा सा मोमेंट ही उसने बिताया है, तो वो मोमेंट के बारे में अपनी वाइफ को लेटर लिख रहे हैं। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quiet all about, as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. वैसी ही मॉर्निंग थी जो जनरली क्रिसमस के वक्त होती है। क्रिसमस मीन्स 25 December and this month is the winter month. It was cold night, it was frosty night and it was beautiful morning and the soldier was in their trenches. ट्रेंचीज ऐसा होता है जो लॉन्ग और डीप डीच होता है, खड्डा बनाकर जिसमें सोल्जर अपने आप को हाइड करते हैं। एनिमी को छुपाने के लिए अपने आप को ट्रेंचेस में, जो ज़मीन के अंदर खड्डा होता है उसको ट्रेंचेस कहते हैं, जिसमें सोल्जर्स जो है वो छुपे होते हैं। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। उसने कहा कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमने शुरू किया। क्या शुरू किया? बट द ट्रूथ आई एम असेम्ड टू से इट इज़ दैट फ्रिज बिगेन टू इट। लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही कि हमने शुरुआत नहीं की थी, लेकिन फ्रिड्स ने की थी। अब आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि फ्रिड्स कौन है। तो फ्रिड्स FRITZ, फ्रिड्स मीन्स अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर। जर्मन सोल्जर को यहाँ पर फ्रिड्स कहा है। फर्स्ट someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Someone saw the white flag and we know that white means white is indicating the peace. अगर शांति हो, चाहनी हो तो वाइट फ्लैग दिखाना पड़ता है। सो फ्रीड्स सोल्जर शोविंग द वाइट फ्लैग, वेविंग मतलब शेकिंग करके वाइट फ्लैग बताए। Then they were calling out to us from across no man's land. Happy Christmas, Tommy. Happy Christmas. Fritz means German soldier. Tommy means British soldier. So, the German soldier waving white flags and wishing Happy Christmas, Tommy. Happy Christmas. Tommy means British Army. When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." उसने वहाँ से कहा कि हैप्पी क्रिसमस, तो हमारे में से मीन्स ब्रिटिश आर्मी में से भी किसी ने कहा कि सेम टू यू, आपको भी हैप्पी क्रिसमस। आई थॉट दैट वुड बी दैट, वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। हमने भी यही किया कि हमने भी उसको बता दिया कि हैप्पी क्रिसमस। अब सब ने कहा कि हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। और किसी ने, हमारी आर्मी में से भी किसी ने वाइट फ्लैग बताया। डोंट शूट लेड्स, अब कहा कि डोंट शूट, किसी को शूट करना नहीं है। LED लेड्स मीन्स जो मेन होता है उसके लिए लेड होता है
और जो लेडी होती है उसके लिए लेडी होता है, लेड एंड लेडी। सो यहाँ से आई मतलब नरेटर ने जो जिम मैकफर्सन है उसने कहा कि सूट करेगा कोई नहीं। जिम मैकफर्सन है वो वहाँ का मेन जो होता है जनरल है। समवन साउटेड एंड नो वन डिड, किसी ने भी सूट नहीं किया। देन देर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापाट एंड अनदर, कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स ट्रिक बट इट वॉजंट। Then another German soldier stood up and waving the white flag. But here, Jim McPherson commanded his soldier that not to up your heads, कि ऊपर अपने हेड लाना नहीं है। मे बी अ ट्रिक, शायद उसकी कोई ट्रिक हो सकती है। One of the Germans was waving a bottle above his head. It's a Christmas day, Tommy. और वहाँ से देखा कि एक जर्मन सोल्जर अपने हेड पर बोतल रखकर कह रहा है कि आज तो क्रिसमस है टॉमी। टॉमी मीन्स ब्रिटिश आर्मी, वाइट पीपल, वाइट आर्मी। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू। यस, उसने कहा कि हमारे पास स्नैप्स भी है, सॉसेज भी है। स्नैप्स मीन्स जर्मन ड्रिंक होता है वो, और सॉसेज मतलब वो मांस का टुकड़ा फायर पर पकाया हुआ। सो वी मीट यू। यस, उसने कहा कि चलो हमारे पास ड्रिंक्स भी है, हमारे पास खाना भी है, तो चलो सेलिब्रेट करते हैं और हम मिलते हैं। अब ये सोल्जर है, एक दूसरे के दुश्मन है। एक तरफ जर्मन आर्मी है तो एक तरफ ब्रिटिश आर्मी है। अभी मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि ये जो है जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ को लेटर लिख रहे हैं, और वो लेटर में कनी को लिख रहे कि उस दिन उसने क्या किया था। By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. आपको पता होना चाहिए कि नो मैन लैंड क्या होता है। तो नो मैन लैंड ऐसी जगह होती है जहाँ पर नो मैन लैंड एक ऐसा एरिया होता है कि वो ज़मीन किसी की नहीं होती। अब यहाँ पर वर्ल्ड वॉर चल रहा है, जर्मन आर्मी है, यहाँ पर एक ब्रिटिश आर्मी एक दूसरे की दुश्मन है, और क्रिसमस है। तो जर्मन आर्मी ने शुरुआत की कि आज तो क्रिसमस है, नो फाइटिंग बट ओनली सेलिब्रेशंस। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। कम ऑन बॉयज़, अब इसमें से बताता है कि कौन फर्स्ट था। तो लिटिल प्राइवेट मॉरिस जो था वो फर्स्ट था, और उसने भी कहा कि कम ऑन बॉयज़, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, आई वॉज द ऑफिसर। अब यहाँ पर जिम मैकफर्सन कह रहे कि मैं तो ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मुझे वहाँ पर उसको रोकना चाहिए था क्योंकि वो उसका ऑफिसर था। आई सपोज बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकॉर्ड टू मी आई शुड, कि वो ऐसा हुआ नहीं और मैंने उसको रोका नहीं। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर। मैंने देखा कि उस तरफ से भी लोग, यहाँ पर सोल्जर इस तरफ आ रहे थे और हमारे सोल्जर उस तरफ जा रहे थे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। ग्रे कोट्स मीन्स जर्मन आर्मी एंड खाकी कोट्स मीन्स ब्रिटिश आर्मी। मीटिंग इन द मिडल, दोनों मिल रहे थे। वो दुश्मन थे फिर भी मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी उसमें था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उसका हिस्सा बन गया। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, कि किसका था वो, युद्ध मैदान था, और वहाँ पर दे वर ट्राइंग टू मेकिंग द पीस, और वहाँ पर शांति बनाने की कोशिश कर रहे थे। You cannot imagine, dearest Kani, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, उसने उसमें से जर्मन आर्मी में से उसका जो ऑफिसर आता है और अपना हाथ आउटस्ट्रेच मीन्स कि स्प्रेड करते हुए बोलता है कि हैंस वुल्फ, अपनी पहचान बताता है कि वो हैंस वुल्फ है। He said, gripping my hand warmly and holding it. अपना हाथ जिम मैकफर्सन के हाथ में वो इतना ग्रिप से मिलाता है और उसमें वॉर्मिंग एक अच्छी सी एक वॉर्म वेलकमिंग थी। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ,
यहाँ की जर्मन आर्मी के ऑफिसर ने कहा कि उसका नाम हैंस वुल्फ है और वो डसलडोर्फ से है। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। और हैंस वुल्फ कहते हैं कि वो युद्ध में नहीं थे, वर्ल्ड वॉर में जब सोल्जर नहीं थे तब वो पहले ऑर्केस्ट्रा बजाते थे, हैप्पी क्रिसमस। हैंस वुल्फ कहते हैं कि वो ऑर्केस्ट्रा बजाते थे और जिम मैकफर्सन से वो मिलते हैं। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट एंड द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। नाउ जिम मैकफर्सन भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं कि वो स्कूल में टीचर थे और कहाँ से वो, ही इज़ फ्रॉम डोरसेट फ्रॉम द वेस्ट England. So here both introduce each other. From the German army Hans Wolf and the British army Jim McPherson. वहाँ के कैप्टन और यहाँ के कैप्टन मिलते हैं, Hans Wolf and Jim McPherson. Oh, that's short. He smiled. I know this place. I know it very well. We shared my rum rations and his excellent sausage, and we talked Connie. How we talked. He spoke almost perfect English. And जिम मैकफर्सन बताते हैं कि हैंस वुल्फ है वो एक अच्छी सी इंग्लिश बोल लेते हैं और उसको डोरसेट के बारे में भी पता है। But it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. और उसके कहते कि हैंस वुल्फ को इंग्लैंड के बारे में पता है, कभी आए नहीं है, डोरसेट में अपना कभी पैर भी नहीं रखा। इवन दो ही नो अबाउट द डोरसेट, ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। उसने स्कूल में जब पढ़ रहे थे तब किताबों में कहीं उसने डोरसेट के बारे में पढ़ा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Madding Crowd. और बताते हैं कि हैंस वुल्फ है, उसने कहीं डोरसेट के बारे में इंग्लिश की बुक में पढ़ा था और उसके फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी है और इसकी फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है। सो दिस इज़ अबाउट हैंस वुल्फ। और जिम मैकफर्सन हैंस वुल्फ के बारे में बता रहे उसके, क्योंकि उसने उस दरमियान बातचीत की थी, उसमें उसको हैंस वुल्फ के बारे में पता चला। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट। अब जब वो मिल रहे थे नो मैन लैंड पर, तब जिम मैकफर्सन एंड हैंस वुल्फ ने कई सारी और टॉपिक पर चर्चा की। इन दियर टॉक the topic were Bathsheba, Gabriel Oak, Sergeant Troy and Dorset. He had a wife and one son, born just 6 months ago. Hans Wolf is married man and he had a son, and the son is only 6 months old. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Okay, so it was Christmas Day, and Christmas Day में ये लोग क्या कर रहे थे? They were enemy, एक दुश्मन थे, फिर भी वो एक शांति स्थापने की कोशिश कर रहे थे। दुश्मन थे फिर भी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. और उस वक्त उसने केक भी खाया, और marzipan is a name of cake. Marzipan means a sweet covering on a cake made from sugar, eggs and almond से बना हुआ जो केक होता है उसको कहते हैं marzipan, and it was his favorite too. We agreed about everything and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie. उसने कहा कि वो दुश्मन थे, फिर भी their thinking were same. They both were wanted the peace. ये दोनों दुश्मन थे, फिर भी उसके विचार भी कितने सारे सिमिलर थे और वो क्रिसमस पार्टी एक साथ वो एंजॉय कर रहे थे। सो स्टूडेंट, वी आर स्टॉपिंग हियर। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट लेसन। बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये
नरेटर है उसको रोल टॉप डेस्क मिलता है, वो रिपेयर करने के लिए अपने गैरेज में लेकर आते हैं। वहाँ से उसको ये लेटर मिलता है जो लेटर पर लिखा था कि बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम। ये जिम का लास्ट लेटर है और उसको मेरे साथ बरी कर देना जब समय आए तब। और ये लेटर जो है वो नरेटर रीड करे। अभी ये लेटर पूरा नहीं हुआ बट हमारे पास समय कम है तो हम यहाँ पर स्टॉप हो रहे हैं। होमवर्क में जितने भी वर्ड मीनिंग यहाँ तक आए वो वर्ड मीनिंग क्लास वर्क में लिखने हैं और कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 जो होमवर्क के क्वेश्चन आंसर है वो आपको होमवर्क बुक में लिखने हैं और वर्ड मीनिंग क्लास वर्क में लिखने हैं। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए है। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप एंड व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉवर? Who do you think had put it there? These 2 question answer you have to write in your homework book. Word meaning in classwork side, question answer in homework book side. Thank you and have a nice day.